So all children, please sit right. And keep your eyes closed very gently. Join your both hands at your heart. Now we all are going to start our class with the chanting of Divine Gayatri Mantra, what we were discussing in our previous class about. Okay, so have a long breath and convert the breath into the chanting of Om first, followed by Gayatri Mantra. Om. ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बच्चों को सादर नमस्ते। सबको नमस्ते बच्चों। चलिए, सो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर गायत्री मंत्र की मीनिंग का एक स्टैंजा लर्न किया था। वी लर्न द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र in the language of English. So I hope and I believe you still remember the first stanza. Am I right? Okay, who is going to chant the meaning of the Gayatri Mantra, the first stanza? कौन? Okay. स्वाति जी, आप किसी को इनवाइट करना चाहेंगे? Okay, maybe Deepti. Yes. दीप्ति, Unmute yourself, Deepti. जी आचार्य जी। हाँ, तो फर्स्ट स्टैंजा जो हमने पिछली बार मीनिंग सीखा था, यू आर द गिवर ऑफ, तो वो आपको यदि याद हो तो बोलो बेटा। जी आचार्य जी। You are the giver of life to us. You nurture, you foster this grand universe. That's great. Anyone else? Ayushi. Beta, you are muted. Okay. हाँ, no, she is unmuted. जी हाँ. बेटा, तो गायत्री मंत्र का मीनिंग का फर्स्ट स्टैंजा। You are the giver of life to us. You nurture, you foster this grand universe. That's great. Okay. So अब हम आगे के लेसन को स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. So we learned the first stanza so far. You are the giver of life to us. You nurture, you foster this grand universe. So there are some questions. Name some of the physical resources of the energy to live or to survive. हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए,
तो उस एनर्जी के कुछ रिसोर्सेस जो फिजिकल रिसोर्सेस है, उनके कोई नाम आप अपनी ओर से बता सकते हो। नेम ऑफ द फिजिकल रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी टू लिव और सर्वाइव। आप में से कोई बताना चाहेगा? Pranshi, yes, beta, tell. ओके, Unmute, yeah. मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं। सम ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द एनर्जी दैट कीप अस सर्वाइव्ड एंड अलाइव। जैसे एनर्जी का एक रिसोर्स है ओशंस। एनर्जी का एक रिसोर्स ओशन मैंने बताया। अब आप लोग बताते जाइए कि सम ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव एंड टू लाइव। आचार्य जी, हीट जी, हीट एक रिसोर्स है। Loudly बोलो बेटा, आपका आवाज बहुत। हीट Heat, क्या कहा इसने? heat, heat, हीटिंग। heat, गर्मी, गर्मी, heat. अच्छा, हीट, गर्मी। सो गर्मी इज नॉट ए रिसोर्स इटसेल्फ। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। गर्मी इज एनर्जी, हीट इज एन एनर्जी बेटा। हीट इज नॉट द रिसोर्स ऑफ, yeah, heat is an energy itself. Okay, any more answers? Vaidik, would Harika, you like to answer? sun say it again. sun Sun, yeah, that is the one Ultraviolet of sun. the, Yes. yes, the sun. The sun is the one of the most precious resources of energy. Okay, and who Vaidik? else? Water. Water, that's great. Okay, let me show the chart I prepared for you. So can you read them for me? The first one is food. The second one is plants. Third one is air. The fourth one is the sun, the moon, the clouds, the earth, rivers, oceans, mountains, crops, and fire. These are some of the examples only. This is not the whole list. This is not the whole list of the resources of the energy. This is some of the examples of the resources of the energy. So are you agree with me? Do you agree with me? आप बताओ, फूड के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं क्या? प्लांट्स के बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं? एयर के बिना, सन के बिना, चांद के बिना, क्लाउड्स के बिना, धरती के बिना, नदियों के बिना, समुद्र के बिना, माउंटेन्स के बिना, क्रॉप्स के बिना, फायर के बिना क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नो। सो ऑल दीज आर resources of the energy. It means these are the resources of life. इनमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यू आर द गिवर ऑफ लाइफ टू अस। हम क्यों कहते हैं भगवान को, हे भगवान आप हमें लाइफ को देने वाले? तो ये इसके लिए मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि हमें सरवाइव रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पौधे चाहिए, हवा चाहिए, सूरज चाहिए, चांद चाहिए, बादल चाहिए, धरती चाहिए, नदियां चाहिए, समुद्र चाहिए, पहाड़ चाहिए, क्रॉप्स चाहिए, फायर चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, हु क्रिएटेड एंड प्रोवाइडेड ऑल दीज रिसोर्सेस? हु क्रिएटेड all these resources and who provided all these resources? क्या आपको लगता है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सन को बनाते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वे क्लाउड्स को बनाते हैं क्या? तो अब मुझे सही आंसर चाहिए, हु क्रिएटेड एंड प्रोवाइडेड ऑल दीज रिसोर्सेस? ओके, निहारिका, अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ।
क्या कहा बेटा? भगवान। जी भगवान, आपने कहा भगवान। बाकी लोगों से पूछते हैं। आरिका, आपको क्या लगता है बेटा? आचार्य जी मुझे भी भगवान ही लगता है। दैट्स ग्रेट। आयुषी, आपको? आचार्य जी मेरे को भी भगवान लगता है। And Sanskriti agrees with all those. And Veda, आपको क्या लगता है बेटा? What do you think, Veda? Yeah, it's God. Yes, it's God, right? Veda. Acharya, even I think God is the one who made all of these things. Exactly. So the real answer and the correct answer is God. Okay. So the answer is God. So God created and provided all these resources listed in the above chart. That's why we chant, you are the giver of life to us. Okay. So we have to praise God saying these words, oh God, you are the only one who gives us life. That's why we chant that you are the giver of life to us. Can you repeat it with me? You are the giver of life to us. You are the giver of life to us. अच्छा, अब ये बता दो, जब गॉड हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है, so should we show some gratitude to God or not? Shall we thank God or not? Yes, we have to thank God. We have to pay our thanks to God. And what is the way to thank God? The one of the best way is doing good karma is thanking God. Doing good karma is thanking God. If I join my both hands and I pray God and I say my gratitudes to God and I never follow the good path, is it the way to thank God? No, it is not the right way. The right way is हमें भगवान जी की भक्ति भी करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें अच्छे काम भी करने चाहिए. ओके, अब आपसे कोई पूछेगा, so how can you say that God is giver of life? आप उसको आंसर कर सकेंगे? कैसे कर सकेंगे? आप उनसे पूछो, हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, धरती चाहिए, खाना चाहिए. और ये सब कौन बनाता है? गॉड बनाता है. So that's why we say that, oh God, you are the giver of life to us. Got it? Now moving to next words. So can you say what is this one? Can you recognize the picture? इस पिक्चर में क्या है? Okay, again, I want to go with Niharika. Galaxy. Okay, so you want to say it is galaxy. और मेधांश को क्या लगता है? गैलेक्सी और यूनिवर्स. गैलेक्सी और यूनिवर्स. ग्रेट. और दीप्ति, आपको क्या लगता है बेटा? ये क्या है? ये जो इमेज आप देख रही हो, ये क्या है? It is the grand universe. इट इज द ग्रैंड यूनिवर्स. ग्रेट. और वेदा, आपको क्या लग रहा है? Acharya ji, this is the Milky Way galaxy in which our solar system is located. Okay, so this is the Milky Way galaxy, the imaginary picture of the Milky Way galaxy where our solar system is located. That's great. Okay, so हम देखते हैं ये क्या है.
So an imaginary picture of this grand universe, or you can say an imaginary picture of this Milky Way galaxy. तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? जी कौन बताना चाहेंगे? प्राची आप बता दो। प्रांशी। मिल्की वे गैलेक्सी। अच्छा, आप में से हिंदी में इसका नाम कौन बता सकता है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश? ओके। सो आज बच्चों ये सीख, गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। गैलेक्सी को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। आकाश। और इस मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाश गंगा। ओके। तो इस ह्यूज जैगेंटिक यूनिवर्स को या गैलेक्सीज को या नेब्यूलास को, स्टार्स को कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? और ग्रैंड पेरेंट्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया? इज इट पॉसिबल फॉर देम? नो, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये गैलेक्सीज को, इतने गैगेंटिक जैगेंटिक जो यूनिवर्स है, इसको बनाने वाले अगेन गॉड है। अच्छा, इसके अंदर जितने भी क्रिएशन और क्रिएचर है, इसके अंदर जितने भी क्रिएशन और क्रिएचर्स है, उन सभी को कौन फीड करता है? द गवर्नमेंट्स? नो। द चैरिटेबल ट्रस्ट्स? नॉट एट ऑल। फिर कौन करते हैं? छोटी सी चींटी है, पानी के अंदर मछली है, हवा के अंदर पक्षी है, पहाड़ों के अंदर है, गुफाओं के अंदर है, समुद्र की गहराइयों में है, आंखों को दिखाने वाले क्रिएचर्स है, आंखों को न दिखाई देने वाले बहुत नैनो पार्टिकल से भी छोटे छोटे क्रिएचर्स है। उन सभी क्रिएचर्स को कौन कौन उन सभी को खाना देता है, लाइफ प्रोवाइड करता है? I think your answer is God, right? जी, गॉड ही करता है। तो इसीलिए आगे देखिए और इन अच्छी अच्छी बातों को हम जानेंगे। So who created the gigantic universe? Answer is God. Can anyone else create this universe? No. No one can create this gigantic universe. Only God can do that. Only God can do that. So, okay, can anyone else manage and control this gigantic universe? आपको क्या लगता है कि सूरज को कोई कंट्रोल करेगा? गैलेक्सीज को कोई कंट्रोल करेगा? सो नो वन एल्स। इस यूनिवर्स के अंदर ये जो जैगेंटिक प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनको गॉड के बिना कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको गॉड के बिना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मैनेज ही नहीं कर सकता। ओके, who only can manage and control this gigantic universe? Simple answer, God only. That's why we say that you nurture, you foster this grand universe. No other, no anyone else can nurture, can foster this grand universe. चलो बेटा, आपको पता है ना, कई बार जंगलों के अंदर आग लग जाती है, आपको पता है? गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत कोशिश करती है, किंतु 10-10 दिन होने पर भी वो वहां की आग को बुझा नहीं पाती। फिर अचानक वहां पर बारिश हो जाती है, 1 दिन 2 दिन बारिश हो जाती है, सारी आग शांत हो जाती
तो इंसान मैनेज नहीं कर सकता, इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, केवल ट्राई कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग बोलिए, यू आर द गिवर ऑफ लाइफ टू अस। सब मिलके बोलो, You are the giver of life to us. you nurture, you foster this grand universe. You nurture, you foster this grand universe. और एक बार, you are the giver of life to us. You are the giver of life to us. You nurture, you foster this grand universe. You nurture, you foster this grand universe. ओके, अब हम इस बात को यहाँ पर रोकते हैं, एक दूसरी बात स्टार्ट करते हैं। आज आज एक दूसरी बात इसमें ऐड करते हैं। ओके, हाउ मेनी वेदास आर देयर? Good, you are showing your fingers, that's great. And what are the names of the Vedas? हाँ, कोई अनम्यूट करके बता दो। ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, समवेदा। बहुत एक्साइटेड है ये। तो ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा एंड ऋग्वेदा। ओके, ग्रेट। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ह्यूमन बीइंग अपने आप कुछ सीख सकता है क्या? सारे बच्चों सोचो एक बार, कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न समथिंग देयरसेल्व्स without help of the others? Is it possible? It is not possible. आज आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, so you created your own language. आपको क्या लगता है, आपने अपनी लैंग्वेज खुद बना ली? नो। अच्छा, आप लोग पैरों के ऊपर खड़े होकर के दौड़ते हो, आपको क्या लगता है दौड़ना आपने अपने आप सीखा? नो, दौड़ना, पैरों के ऊपर खड़ा होना आपने अपने आप नहीं सीखा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को किसी कंटेनर के ढक्कन को बंद करना और खोलना आता है? सबको आता है, सबको आता है। क्या आपको लगता है कंटेनर को, ढक्कन को बंद करना और खोलना आपने खुद ही सीख लिया, किसी ने नहीं सिखाया? ओके, आप लोगों में से कितने लोगों को नॉट लगाना आता है? रस्सी में नॉट लगाना कितने लोगों को आता है? सबको आता है। आपको लगता है नॉट लगाना आपने अपने आप सीख लिया? नो, किसी ने आपको सिखाया। सो द कंक्लूजन इज, we can learn nothing ourselves. हम अपने आप कुछ नहीं सीख सकते, हम अपने आप कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि हम अपने आप कुछ सीख सकते, there is no requirement of the schools, colleges, educational societies, academic societies, tutors, musicians, किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम सब म्यूजिक अपने आप सीख लेंगे, हम चैंटिंग्स अपने आप सीख लेंगे। इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज? अभी मैंने नॉलेज मैंने पेरेंट्स से, मैंने टीचर से सीखा। आपके टीचर्स ने नॉलेज कहां से सीखा? तो उनके पेरेंट्स और उनके टीचर से सीखा। तो उन लोगों ने किससे सीखा? उनके पेरेंट्स से सीखा। और उनके पेरेंट्स ने किससे सीखा? उनके पेरेंट्स से। पर जो दुनिया में पहली बार जो इंसान पैदा हुआ, उसने कैसे सीखा? अपने आप नहीं सीख सकता ना। तो गॉड ने द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, द फर्स्ट generation of the human beings was taught by God.
लिख लीजिए, द फर्स्ट generation of the human beings was taught by God. तो फिर फर्स्ट जनरेशन ने सेकंड जनरेशन को सिखाया, सेकंड जनरेशन ने थर्ड जनरेशन को सिखाया, किंतु फर्स्ट जनरेशन को किसने सिखाया? God himself. Okay, so God gave the knowledge for the first generation of the human beings at the starting of the creation of the human beings. जब ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड हुए, यानी कि गॉड ने क्रिएट किया, तब उन ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने नॉलेज दिया. ओके, सो द नॉलेज that was given by God is Vedas. The knowledge that was given to the first generation of human beings, that was provided to the first generation of human beings by God, is called Vedas. तो आज हम वेदों के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं. So how many Vedas are there? The question is, how many Vedas are there and what are their main themes? Is it interested? You know the names of the Vedas, and we learned how to remember the proper order of the Vedas. But now we are expanding our question, asking that what are the main themes of the Vedas? And God ने ये चार वेदास किसको? चलिए मैं थोड़ी देर के लिए ये स्क्रीन हटा रहा हूं. मेरा सवाल आप लोगों से है, गॉड ने कितने लोगों को स्टार्टिंग में वेदास दिए? लेट अस स्टार्ट द गेस वर्क. एक एक से पूछते हैं. जी, आप स्वाति जी एक एक करके आप सबसे पूछिएगा, देखते हैं कौन करेक्टली आंसर देता है. आप बताओ. 4. फोर. ओके, प्रांशी 2 लोगों को दिए. ओके, प्रांशी 2. ओके, यशिता 4. ओके, 4. नाविका Everyone who is present in the first generation in India. everyone Okay. first generation. Okay, Niharika 4. Pardon? Deepti 2. 2. Veda Sahasra and Samskriti 4 rishis were given those knowledge. okay. Hold on. Ayushi 4. okay. Arika कितने लोगों को ईश्वर ने 4. and 4. संस्कृति छोटी वाली 4. संस्कृति. हाँ, yes. No, beta, there are 2 Sanskritis, so I'm asking the younger one. Sanskriti, yes. 4. 4. So most of you are with answer 4. चलो हम अपने चार्ट के ऊपर देखते हैं, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर देखते हैं सही आंसर क्या है इसका. इसका सही आंसर है 4. So you can look the name of the rishis. The knowledge was given to. So Rigveda, the knowledge of the Rigveda was given to Agni Rishi. You can write it there. आप लिख सकते हैं बेटा इनको. ऋग्वेद का नॉलेज गॉड ने किसको दिया? अग्नि ऋषि को दिया. So the knowledge of the Yajurved
The knowledge of the Yajurveda given to Vayu Rishi. So the question number 1, the knowledge of the Rig Veda was given to whom? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बताइए. The knowledge of the Rig Veda was given to whom? Agni Rishi. Agni Rishi. Agni Rishi. Agni Rishi. Okay. The knowledge of the Yajurveda was revealed or given to whom? Say, all of you can say together. Vayu Rishi. Vayu Rishi. Vayu Rishi. Vayu Rishi. And the third question. The knowledge of the Samaveda was given to whom? Aditya Rishi. Aditya Rishi. Rishi. Aditya Rishi. And the knowledge of the Atharva Veda was given to whom? Angira Angira Rishi. Rishi. Angira Rishi. आपको याद हो गया? अब मैं पूछूं आप लोगों से. चलिए, मैं स्क्रीन को हटा रहा हूं. अब आप लोगों से पूछ रहा हूं. ऋग्वेद का नॉलेज गॉड ने किस ऋषि को दिया? जी बताइए. Okay, Midansh. ऋग्वेद का नॉलेज गॉड ने किस को दिया? आपने अनम्यूट करो. हाँ, अनम्यूट करो. Agni Rishi. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यजुर्वेद का नॉलेज गॉड ने किस ऋषि को दिया? दीप्ति. Vayu Rishi. दैट्स ग्रेट. सामवेद का नॉलेज गॉड ने किसको दिया? निहारिका. Aditya Rishi. राइट अगेन. एंड फाइनली अथर्ववेद का नॉलेज गॉड ने किसको दिया? Navika. You could note it down. Okay, we'll go to Vedic. Agnira Rishi. Angira. Angira Rishi. Angira Rishi. Okay. Now I am going to appoint Arika as our teacher and instructor. Now she is going to ask us randomly. She can ask us the questions. आप जंबल करो बेटा, इसको ना एक ऑर्डर में मत पूछो. आरिका, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं. आप हमारी क्लास में से किसी से भी एक क्वेश्चन पूछोगे कि सामवेद, अथर्ववेद, कोई भी क्वेश्चन आप अपनी ओर से किसी से भी पूछो. आचार्य जी, मुझे क्वेश्चन तो पता है, पर मुझे कोई बच्चा नहीं पता उसका नाम. आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे ना बेटा? आपको दिख नहीं रहे बच्चे स्क्रीन पर? बच्चों के नाम. आप फोन से बात कर रहे हो? आप हाँ, फोन से देख रहे हो, कंप्यूटर से देख रहे हो? ओके. बच्चों के नाम किसको दिखाई दे रहे हैं? सभी स्टूडेंट्स के नाम. ओके. प्रांशी, आप एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से टीचर बनकर किसी भी स्टूडेंट से पूछो. नो, यू आर द टीचर ऑफ द क्लास. नाविका से. नाविका से क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन क्या है? अंगिरा ऋषि को किस वेद की नॉलेज मिली? दैट्स ग्रेट. बहुत बढ़िया पूछा आपने. अंगिरा ऋषि को किस वेद का नॉलेज गॉड ने दिया? नाविका, क्वेश्चन टू यू. अथर्ववेद. गुड गुड गुड. ओके, नाविका ने सही आंसर दिया, इसलिए नाविका इज गोइंग टू बी द टीचर ऑफ द क्लास. सो नाविका, अब आप एक क्वेश्चन अपनी क्लास से किसी से भी पूछो. आपको भी नाम नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं. ओके, तो पहले अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करो. इवन आप मुझे भी सिलेक्ट कर सकते हो एज योर स्टूडेंट. वेदा. Okay, ask the question.
The knowledge of Yajurved was ओके, किस ऋषि को यजुर्वेद का नॉलेज दिया? Vayu Rishi. ये सही है बच्चों या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। अब वेदा, नो यू आर द टीचर ऑफ द क्लास। Select your student and ask the question. I'll ask Yashita. Mhm. My question is, which Veda did Aditya Rishi give the knowledge to? Okay. We can't hear you. Samveda. That's right. सही है ना? बिल्कुल सही, सामवेदा. So now we are moving towards the themes, the main theme of the four Vedas. Okay. आप ना ये सारी बातें अपने पेरेंट्स से पूछनी है. ओके. आप क्लास खत्म होने के बाद में आपके पेरेंट्स के पास जाइए और अपने पेरेंट्स से पूछो, अच्छा बताओ ऋग्वेद का नॉलेज गॉड ने किसको दिया? ये पूछो आप अपने पेरेंट्स से. ओके. और उनसे पूछो, अच्छा अंगिरा ऋषि कौन थे? उनको पता है या नहीं पता? सो यू आर लर्निंग द नॉलेज that your parents were not familiar with. ओके. आपके पेरेंट्स को जो नॉलेज नहीं है पता, उसको भी आप यहाँ पर इस क्लास में सीख रहे हो. ओके. तो एक बार हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं. सो द मेन थीम ऑफ द ऋग्वेदा इज नॉलेज. Knowledge of all objects, material and spiritual. Knowledge of all material objects and spiritual objects. So what is the main theme of Rigveda? The main theme of the Rigveda is knowledge of all. What do you mean by all? All means all the material objects and all the spiritual objects. तो इसको हम कहते हैं सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक पदार्थों का ज्ञान. ऋग्वेद का टॉपिक क्या है? ऋग्वेद का थीम क्या है? द थीम, द मेन थीम ऑफ द ऋग्वेदा इज ज्ञान. इट मीन्स द knowledge of all objects, if they are material or they are spiritual. Got it? Okay. So who is going to answer the question, what is the main theme of the Rig Veda? जिसवाती जी पूछ लीजिए. Ayushi? Knowledge of all objects, materials, and spiritual. Great. All the knowledge of all material objects and spiritual objects. Okay. Number 2. The main theme of the Yajurveda is karma. The main theme of Yajurveda is karma. It means good actions done with the object of doing good to others. So Yajurveda is not going to explain you the bad actions that are harmful for you and that are harmful for others as well. So that is not the subject of the Yajurveda. The subject of the Yajurveda is karma, but only the good karma, only the good actions. What are the good actions? How to identify them? How to follow the good path, doing the good karma? All this is explained in the Yajurveda. So we can say that good actions done with the object of, with the purpose of doing good to others. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? यदि आपसे अब कोई पूछे, so what is the main theme of the Yajurveda? In single word,
that is karma. But how will you explain karma? So is there anyone who is going to explain the karma? Okay, Deepti. So what Good is the main theme actions of done the with the object of doing good to others. Yes. So what do you think? Does Veda teach you how to do bad to others? आपको क्या लगता है? वेदास आपको ये सिखाएंगे कि यजुर्वेद आपको ये सिखा सकेगा कि दूसरों का बुरा कैसे करना है, दूसरों को कैसे परेशान करना है? नहीं, यजुर्वेद हमें केवल गुड कर्मा के बारे में, गुड एक्शंस के बारे में, with the purpose of doing good to others, doing welfare of others. So the main theme of Yajurveda is karma. In single word, karma. The main theme of Rigveda, knowledge, gyan. Okay. So what is the main theme of the third Veda, Samaveda? So in single word, that is upasana. सामवेद के अंदर क्या है? उपासना. ऋग्वेद के अंदर क्या है? ज्ञान. यजुर्वेद के अंदर क्या है? कर्म. सामवेद के अंदर क्या है? उपासना. इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? उपासना मीन्स डिवोशन एंड कॉन्टेम्पलेशन that leads to peace and bliss. तो सामवेद हमें क्या सिखाएगा? The devotion and the contemplation that leads us to peace and the divine bliss. शांति एवं आनंद को पाने के लिए, शांति एवं आनंद को पाने के लिए जो भक्ति और ध्यान की जरूरत है, वो हमें सामवेद उसके बारे में बताता है. तो सिंगल वर्ड में सामवेद का थीम क्या है? उपासना. चलिए, ये 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं, सब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सब. सिंगल वर्ड में ऋग्वेद का थीम क्या है? ज्ञान. ज्ञान. सिंगल वर्ड में यजुर्वेद का थीम क्या है? कर्म. कर्म. दैट्स ग्रेट. सिंगल वर्ड में सामवेद का थीम क्या है? उपासना. दैट्स ग्रेट. ओके, उपासना किसका थीम है? गुड. ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान किस वेद का थीम है? यजुर्वेद का थीम क्या है? कर्म. कर्म. गुड एक्शंस और बैड एक्शंस? Good actions. Good actions. Good actions are always helpful to others. Okay. And the last one is Atharva Veda. So Atharva Veda's main theme is Vijnana. You can say Vijnan ya Vigyan. So in single word, what is the theme of the Atharva Veda? Vigyan. And how will you explain it? So combination of knowledge, action, and devotion. The main theme of Atharva Veda is the combination of the knowledge, the actions, and the devotion, that is called Vijnana. Got it? चलिए, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछता हूँ. Combination of knowledge, actions, and the devotion. चलो, अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, और आप सब अपने आप को अनम्यूट करो. जो भी रैपिडली आंसर कर सकता है करो. We are not going to choose anyone. Okay? आदित्य ऋषि को कौन सा वेद मिला? सामवेद. Good. Okay. अग्नि ऋषि को कौन सा वेद मिला? ऋग्वेद. यजुर्वेद कौन से ऋषि को मिला?
वायु ऋषि। वायु ऋषि। वायु ऋषि। Good. वायु ऋषि को जो वेद मिला उसका थीम क्या है? कर्मा। कर्मा। Karma. Good. And how will you explain karma to others? Good Good actions actions done with the good to others. Yes. Okay. Fourth Veda का नाम क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेदा। अथर्ववेदा का प्रिय अथर्ववेदा का प्रिय वेदा का नाम क्या है? ओके। तो यजुर्वेदा के बाद में कौन सा वेद आता है? सामवेद। सामवेदा। सामवेद का थीम क्या है? उपासना। उपासना। और सामवेद किस ऋषि को दिया गया? आदित्य ऋषि। आदित्य ऋषि। चारों वेदों का नॉलेज किसने दिया? भगवान। गॉड ने दिया। गॉड ने चारों वेदों का नॉलेज कब दिया? First generation of human beings. Yeah, at the first generation, creation of the first generation of the human beings. Can you say that in the number of years? So you can approximately say that 1.97 billion years ago. 1.97 billion years ago. So Vedas, so the age of the human generation is 1.97 billion years. तो ह्यूमन बीइंग्स का फर्स्ट जनरेशन 1.97 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। तो उस फर्स्ट जनरेशन को गॉड ने वेद का नॉलेज दिया। ओके। अच्छा, क्या ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को सीख सकते हैं? नहीं। आप कुछ भी नहीं सीख सकते। क्या ह्यूमन बीइंग्स को ये पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए बाय बर्थ? नहीं पता। यदि छोटा सा बच्चा हो, एक काम करो, आप अपने फिंगर को हनी के अंदर डुबो दो और उसके मुंह के पास ले जाओ, वो उसको चाटेगा ना? और आप अपने फिंगर को कीचड़ के अंदर डुबो दो, मड के अंदर, और उसको छोटे से बेबी के पास लेके जाओ, तो वो स्मेल नहीं करेगा। आप एक छोटी सी, वो उसको भी चाटेगा, वो उसको भी चाटेगा। सो कंक्लूजन इज, जब हम पैदा हुए थे हमें ये भी नहीं पता था हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना? एक छोटी सी बिल्ली को पता था, एक छोटा सा कॉफ को पता था, एक छोटे से पप्पी को पता था उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर हम ह्यूमन बीइंग्स को यह भी नहीं पता था हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। राइट? तो ये सब किसने सिखाया? तो एट द वेरी फर्स्ट जनरेशन गॉड ने हमें ये सब सिखाया। और सिखाया किस माध्यम से, किस मीडियम से? थ्रू द मीडियम ऑफ वेदास। थ्रू द मीडियम ऑफ वेदास। तो ठीक है बेटा, यहां पर हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चंस है तो हम आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हैं। स्वाति जी, आप इनवाइट कीजिएगा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है क्वेश्चन। Midansh, ask the question. Midansh, question. कौन से साल में फर्स्ट जनरेशन में इंसान बने थे? क्या पूछा है इसने? किस जनरेशन में? कौन से साल में ओके, 1.97 बिलियन BC बिफोर क्रिस्ट। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 1.97 बिलियन ईयर्स पहले। ओके। Now today go and check how many zeros are there in billion. Okay? Midansh? जी। Okay, next question, Ayushi. आचार्य जी, जो चार वेद है वो बस इन्हीं चारों ऋषियों को क्यों दिए? मतलब कोई किसी और को भी तो दे सकते थे। बिल्कुल सही, बिकॉज दे वर द बेस्ट।
तीन ही लोगों को गोल्ड मेडल क्यों दिया, तीन ही लोगों को मेडल क्यों दिया, एक ही को फर्स्ट रैंक क्यों आया? बिकॉज ही और शी वाज द बेस्ट। तो जब फर्स्ट जनरेशन हुआ तो उस फर्स्ट जनरेशन में तो मोस्ट प्योरली जो सोल्स थे, जो सबसे प्योर सोल्स थे, उन 4 प्योर सोल्स को गॉड ने ये नॉलेज दिया। बाकी सभी सोल्स को मेहनत करनी पड़ी सीखने के लिए, किंतु उन 4 सोल्स को गॉड ने उनकी प्यूरिटी के कारण उनको वो 4 वेदास दे दिए। राइट? ओके, नाविका बेटा। आचार्य जी, आपने बोला था कि अथर्ववेदा का थीम विज्ञान है। लेकिन विज्ञान को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो साइंस होता है। तो यस बेटा, अच्छा ये बताओ, नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज साइंस इटसेल्फ और नॉट? किसी, फॉर एग्जाम्पल फायर का नॉलेज, ये साइंस के अंदर आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, नॉलेज ऑफ एयर, नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉलेज ऑफ प्लांट्स, ये सब साइंस के अंदर आएगा ना? तो आप एक बार सोचो, ऋग्वेद का थीम क्या है? ऋग्वेद का थीम है नॉलेज, नॉलेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो जिसको आप साइंस कह रहे हो वो साइंस एक्चुअली नॉलेज है, वो विज्ञान नहीं है। बोलचाल की भाषा में हम विज्ञान माने साइंस करते हैं, नहीं। तो जहां पर नॉलेज, एक्शन और डिवोशन की प्योर नॉलेज दिया जाएगा उसको विज्ञान कहते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, मॉडर्न स्क्रिप्चर्स के हिसाब से नहीं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो डिवोशन का नॉलेज दे, जो एक्शन का नॉलेज दे और जो मटेरियल का नॉलेज दे, उसको विज्ञान कहते हैं। ओके, या वेदा। Acharya ji, I have 2 doubts. हम्म My first doubt is why are there only 4 Vedas? Like, why aren't there 5 Vedas, or why aren't there 3 Vedas? Why are there exactly 4 Vedas? all the requirements of human beings was categorized into only 4 parts. I need knowledge to survive. I need the knowledge of actions to survive. I need to know. I need the knowledge of the devotion to get liberated from all the sorrows for the moksha, and I need the combination of knowledge of these 3 things. That's why this was categorized. The knowledge was categorized into 4 parts. और आपका प्रश्न हमेशा ये रहेगा बेटा, यदि 2 वेदास दिए होते तब भी यही सवाल बनेगा, why only 2? यदि 10,000 वेदास दिए जाते तब भी आपका क्वेश्चन यही बना रहेगा, why there are only 10,000 वेदास, why there are not only 5,000 वेदास? सो ये क्वेश्चन हमेशा बना रहेगा। तो इसका एक ही आंसर बनेगा, ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट्स को देख करके गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट्स को, गॉड कैटेगराइज्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स into 4 categories, and each Veda represents the each category, the category of the knowledge, the category of the actions, the category of the upasana, and the category of the vijnana. That's why God created only 4 Vedas. Acharya ji, my other doubt is, who decided, like in Rig Veda there should be knowledge, in Yajurveda there should be karma, in Sam Veda there should be upasana? Who decided that? Like God himself, he was the author of the Vedas. The knowledge of the Vedas was possessed by God. So God decided to give the knowledge in the Rig Veda, to give the knowledge of the actions in the Yajurveda, and to give the knowledge of the devotion
upasana in the Samaveda and to give the knowledge of the Vijnana in the Atharva Veda, because he was the master of the Vedas. He possesses the knowledge of the Vedas. धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। Harika, अब आचार्य जी इन चारों में से जो ऋग्वेदा के जो भगवान ने जिन इंसान को दिया था, जैसे अग्नि ऋषि और वायु ऋषि और उसके अलावा भी, तो फिर उनमें से कौन सबसे पहले किसको सबसे पहले नॉलेज मिली थी? एक साथ चारों को मिला बेटा, एक साथ चारों को मिला। तो वहां पर एक सेकंड का भी फर्क नहीं है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है, एक साथ चारों। पर भगवान तो एक ही है ना, तो फिर वो चार को कैसे सिखाता है वो? अच्छा, भगवान एक तो है, किंतु वो है कहाँ? वो तो नहीं पता, पर हाँ, ये हम आगे की क्लास में बताएंगे ना आपको वो कहाँ है। ये सारी जगह, मतलब एक जी। है और सारी जगह। अच्छा, एक बात बताओ, जब गॉड सब जगह है तो एक साथ आपको और मुझको टच कर रहा होगा या नहीं? हाँ बेंगलुरु जी। में गॉड है कि नहीं? कर्नाटका में गॉड है? ओके, नाउ आई एम लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, तो तेलंगाना में गॉड है कि नहीं? अच्छा, मेरे घर में गॉड है कि नहीं? आपके घर में गॉड है कि नहीं? So can God touch you and me at the same time or not? Okay. Can God observe you and me at the same time or not? या गॉड को एक बार दौड़ करके तेलंगाना आना पड़ेगा और एक बार दौड़ करके कर्नाटका जाना पड़ेगा आपको और मुझको ऑब्जर्व करने के लिए? नो। So similarly, God is existed in the heart of Rishi Agni. God is existed in the heart of Rishi Vayu, Rishi Aditya, and Rishi Angira with his entire knowledge. So he can give the knowledge at the same time to all four rishis, right or not? देखिए कि हमारे पास हमारे कमरे में एक साथ 4 फोन्स है, ऐसा मान लीजिए एयरटेल के 4 फोन्स है। यदि एयरटेल की कंपनी ने इन चारों फोन्स को एक साथ यदि कोई एसएमएस भेज सकता है कि नहीं? आप अपने व्हाट्सएप के अंदर आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर 50 लोग हैं, उस ग्रुप के अंदर 50 लोग हैं, आपने एक क्लिक करके 50 लोगों को एक मैसेज एक साथ भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? क्यों हारिका? हाँ जी आचार्य जी। भेज सकते हैं ना। तो हम तो फिर भी छोटे टेक्नीशियंस है, हम तो छोटे छोटे इंजीनियर्स है, हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड है। तो गॉड का नॉलेज बहुत बहुत है, अनंत है। गॉड का एग्जिस्टेंस अनंत है, तो इसलिए वो मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है। चाहे तो एक ही पल में आपके दिल के अंदर ऋग्वेदा, मेरे दिल के अंदर यजुर्वेदा को दे सकता है। राइट? Does it make any sense? Okay. okay, Pranshi, हाँ जी you had आचार्य a जी। question? Pranshi, you had a question, right? Yeah, जी ask. प्रांशी। आचार्य जी, भगवान 3 वेदा भी दे सकते थे ना, क्योंकि जो 4th वेदा है वो तो सबका कॉम्बिनेशन है। जी, 4 वेदा सबका कॉम्बिनेशन तो है ही, उसके साथ साथ उसका ज्यादा फोकस मेडिसिन के ऊपर है। 4th वेदा का ज्यादा फोकस मेडिसिन के ऊपर है और अलग अलग प्रकार के वेपन्स के ऊपर है। That's why we were using the word main theme. We were not saying the only theme. Okay, so I was not saying that knowledge is the only theme of the Rig Veda, action is only theme of the Yajur Veda, but I was saying that
action is the main theme of Yajurveda, right? Similarly, Vijnana is the main theme of the Atharva Veda, but it was not only theme of the Yajurveda, right? उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए अथर्व वेदा was required as well. Okay, Samskriti, you had a question? I had a question. Okay, Veda. You are have muted. muted yourself. Oh, sorry. My question was that, yes. One second. Okay. There were 4 rishis, right? Why couldn't one rishi be given 2 Vedas? Then it would only be 2 rishis. Okay, आप ऐसा सोचो कि पहले जो जो कंपटीशन के अंदर एक व्यक्ति पहले आया, so why don't you give him the gold medal and the silver medal and the bronze medal to only one person? Okay, and another thing, whatever was granted and gifted to me was totally dependent on my karma. Okay, if my karma allows me to be gifted with only Rig Veda, how can God will provide the knowledge of Yajurveda to me? My karma was limited for only Rig Veda, and other rishis' karma was limited for only for Yajurveda. Otherwise, God was eligible, he was able to give the knowledge only one rishi. फिर बाद में क्या हुआ, जो ज्यादा एफर्ट्स करने वाले ऋषिस थे वो अग्नि के पास जाकर के ऋग्वेदा को सीख चुके थे, वायु के पास जाकर के यजुर्वेदा को सीख चुके थे, और आदित्य के पास जाकर सामवेदा को सीख चुके थे, और अंगिरा के पास जाकर के अथर्व वेदा को सीख चुके थे. And Brahma was the first rishi who learned 4 Vedas together from all 4 rishis separately. तो ब्रह्मा वो ऋषि थे जो अग्नि के पास जाकर फटाफट ऋग्वेद को, वायु के पास जाकर के यजुर्वेद को, आदित्य के पास जाकर के सामवेद को, अंगिरा के पास जाकर के अथर्ववेद को सीखा. So it was totally dependent on the efforts, right? Acharya ji, I have one more doubt. A small doubt. Okay. Which language were like the Vedas given in? So Vedas were given in the Vedic Sanskrit language. We cannot call that Sanskrit language. That is the Vedic language. And the Sanskrit language, what nowadays we learn, was derived from the Vedic language. So the Sanskrit language is that differs from the Vedic language. Vedic language. So we can call the language of the Vedas just Vedic language. That's it. That is not pure Sanskrit. Dhanyavad, Acharya ji. Okay, finally, Niharika, the last question. Last question, Niharika. आचार्य जी, ये जो हमने आज सीखा है ये हम अपने जनरल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? Exactly. So हमें अपने जनरल लाइफ में यदि मुझे नॉलेज एक्यूमुलेट करना है, now I know where it was given by God. Now I know the knowledge is given in the Rig Veda. तो यदि मुझे मटेरियल का प्रॉपर नॉलेज लेना है तो मुझे ऋग्वेद को पढ़ना है, ऋग्वेद का स्वाध्याय करना है, ये मुझे पता चल गया. ओके, यदि मुझे डिवोशन के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे कॉन्टेम्पलेशन के बारे में जानकारी लेनी है, गॉड के एवर ब्लिस को मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? सामवेद के पास जाना चाहिए. तो मुझे सामवेद को पढ़ना चाहिए. मुझे लाइफ के अंदर आज ये पता चल गया. और एक बात, तो ऑल दिस नॉलेज वाज गिवन बाय गॉड. इससे मुझे क्या पता चला? आई हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू गॉड.
ये मेरे डेली लाइफ में ये कैसे कनेक्ट हो गया? ओ गॉड, आपने इस जाइगेंटिक यूनिवर्स को बनाया, आपने गैलेक्सीज को बनाया, आपने मेरे लाइफ के सभी रिसोर्सेस को बनाया और आपने सारा नॉलेज बना करके मुझे दिया, तो मैं गॉड के लिए थैंकफुल हूं। तो इसलिए मैं रोज गॉड को प्रे करूं, प्रेज करूं विद द वेदास। तो इस प्रकार आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है निहारिका? हाँ। if it doesn't make any sense, just give your counter arguments। यदि आपको लगता है ये जो बात बताई गई है it doesn't make any sense, आप अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो बेटा। किंतु सही बात ये है, आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा लाइफ के सारे रिसोर्सेस हमें किसी ने दिए। आज हमने ये सीखा जिस अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, जिस गैलेक्सीज को हम देखते हैं, वो सारा कॉस्मिक क्रिएचर गॉड ने बनाया और उस क्रिएशन के अंदर जो कोई भी प्राणी है उन सभी को गॉड परवरिश दे रहे हैं और वेदास 4 है और उनको हमने जाना। तो इसलिए हम गॉड के लिए थैंकफुल हो और वेदास को पढ़े। रोज हम वेदास को थोड़ा थोड़ा पढ़े। राइट? चलिए स्वाति जी, अब यहाँ पर रुकना चाहिए, 1.25 घंटा शायद हो रहा है। हाँ, 1 घंटा 8 मिनट हो रहे हैं, अब हमें यहाँ रुकना चाहिए। ओके बच्चों, आप में से शांति पाठ किसको आता है? पीस मंत्रा, ओम द्यौ शांति। रेज योर हैंड्स इफ यू नो द मंत्र ओम द्यौ शांति। Ayushi, please unmute yourself and conclude our session with the peace mantra Om Dhyau Shanti. Okay? बोलो बेटा। ओम शांति अंतरिक्षं शांति शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सर्वं शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आयुषी बेटा। मैं बाकी सभी लोगों को प्रेरणा देना चाहूंगा, आप लोग भी इस मंत्र को सीखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आगे के सेशंस में मैं स्वयं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं पीस मंत्रा, शांति मंत्रा बोलते हैं। तो आप सभी बच्चों ने बहुत इंतुजियाज्म के साथ इस क्लास को, सेकेंड क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया। आप सभी को बहुत धन्यवाद और आप सभी पेरेंट्स को, आप सभी बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए क्लास के साथ। थैंक यू, नमस्ते। आचार्य जी। और बच्चों, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद मेधांश बेटा। तो चलिए स्वाति जी, अब रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, अब सेशन को लीव करते हैं।